The course content today is chapter 10 and 11. Hmm. Earlier, I was thinking that I will cover even chapter 13, but then I realized. Rachita, it's 10, 11, 12, right? Sorry, your question is not clear, Pooja. I'm saying 10, 11 है या 12 भी like 13 है. 13 है, 12 नहीं है. I was checking मैम्स नोट्स उसमें 10, 11, 12 लिखा था. मैं 1 मिनट बता रही हूँ. मेरे पास भी लिखा हो, वो भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. नहीं 10, 11, 13, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 10, 11, 13, 6, 7, 8. Yeah. Okay. Sorry. ठीक है. Okay, so moving on to chapter 10, ma'am ke notes. So even in chapter 10, she happened to mention, I don't know, those who were present, they might have noted it down, but I wrote it for sure, that in chapter 10, the content is not going to be for, the entire chapter 10 content is not coming. It's a very selective content, which is like non-linear cost function and whatever we have created in these notes. ठीक है. तो chapter 10 is about, if I can say, chapter 10 is you're determining how costs behave. So उसमें काफी limited content है. So we will start with this one जो कि मैम ने पढ़ाया था, non-linear. Have we So finished the chapter 3 last time? yes. Okay. Actually, I think I gave everyone homework that they need to do the practicals, and if I there just is any reviewed till doubt. chapter 2 only. That's Oh, why. okay. Yeah, but this might be independent, Prakash. Yes, this is completely independent and new topic in itself. ठीक है? Yeah. Okay. So मैम ने ये कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया था कि there are at times there are costs जो कि they neither are completely variable nor are completely fixed. Okay, so in Holmgren you call it mixed cost. So for the purpose of ease, we will also call it mixed cost. So it has a component of both fixed and variable cost. Earlier, in other books, we used to call it semi-variable cost as well, because only semi part of it is variable and the other part is fixed. So, but since Holmgren says it's a mixed cost, so we will call it mixed cost only. So when in question, you first of all, sorry, is my screen visible? Yes. Okay, cool. So whenever in question we get this mixed cost kind of thing, ma'am gave us 4 ways how you can, segregate the variable part out of it and the fixed part out of it. So we will first look at the high-low method. So in the, under this method, difference between highest and lowest volume is divided by the difference between the sales value at the highest and lowest volume. Okay. So the question thus obtained gives us the rate of variable cost in relation to sales value. So means आपने एक 2 पॉइंट्स दिए होंगे, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं दिए हुए होंगे, आपने कंसिडर करना है highest sales volume and sales volume in terms of rupee, ठीक है, and lowest sales volume and sales volume in terms of rupee. तो आप सेल्स वॉल्यूम का डिफरेंस निकालोगे बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट एंड सेल्स वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट. एंड आपने क्या करना है फिर उसको फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दिया हुआ था, हाईएस्ट वॉल्यूम दिया हुआ था 1,40,000 यूनिट्स एंड लोएस्ट वॉल्यूम दिया हुआ था 80,000 यूनिट्स, एंड मिक्स्ड कॉस्ट था हाईएस्ट पे 72,000 एंड लोएस्ट पे 60,000. तो आपने जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो आपका डिफरेंस आएगा 72,000 माइनस 60,000, दैट इज 12,000, उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे and then divide it by the volume difference. In this case, 140 minus 80 is your 60,000 units.
So divided by 60,000 units, and it gives you an answer of 20% of sales value. ठीक है, तो 20% ऑफ सेल्स वैल्यू इज कि अब आप हाईएस्ट पॉइंट में 72,000 था, उसको अगर 20% से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा. ठीक है, इन दिस केस 28,000, एंड 28,000 जब आप 72,000 में से माइनस करोगे तो योर आंसर इज 44,000 विच इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. इसी को चेक करने के लिए आप देखोगे कि जब लोएस्ट वाले में यही 20% रूल लगा रहे हो तो 60,000 का 20% इज योर 12,000, एंड 12 ही हुआ ना. हाँ, ठीक है, 16 होगा ना, 16 होगा. 8 into 2 16. ओ अच्छा, ओके, बट 8 तो था नहीं ना 60,000. Lowest volume is 80,000, so 80,000 का 20% is 16,000 variable cost. ओके, वॉल्यूम से इसका रिलेशन था नहीं, वैसे इसका तो सीधा कॉस्ट से था, बट ठीक है, फिलहाल के लिए 16,000, एंड देन आपका डिफरेंस आया 44,000. नहीं, इसका बट आप 80,000 का 20% लोगे ना, जैसे नहीं, आपने 1,40,000 का 20% लिया जो 28 आया, वैसे ही आप 80,000 का 20% लोगे जो 16 आएगा, राइट? अच्छा, और हाँ, फिर उसको मिक्स ओके, कॉस्ट में से माइनस कर दोगे. हाँ, ठीक है, तो ओके, इन दैट केस देन आई गूफ्ड अप, देन मे बी ये आपको न्यूमरेटर में जो है वो आपको क्वांटिटी रखनी है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं, नहीं अभी आया. तक आपने अच्छा, बिल्कुल सेल्स सही वैल्यू इज बोला है. डिफरेंट. ओके, ओके, करेक्ट. सॉरी, सेल्स वैल्यू इज डिफरेंट एंड मिक्स कॉस्ट इज डिफरेंट. ठीक है, ओके, गॉट इट. सो मिक्स कॉस्ट का ये परसेंटेज, सो 16,000 आपने सेल्स वैल्यू का, 80,000 सेल्स वैल्यू का 20% इज 16,000, राइट? एंड so 60,000 minus 16,000 is your 44,000 which is a fixed cost. तो Right. यहाँ तक किसी को डाउट है? I think the only thing we need to remember is ये जो 20% आ रहा है, this is coming as the variable cost. Yes, yes, this is very important. 20% of sales value is your variable cost. What we are doing right now, we are calculating in the high side of the volume and the lower side both, na? Right. So we are dividing the percentage to the volume or percentage to the price. To the price. Okay. Rachita, इसमें if I'm just referring the book, it says slope coefficient. ये slope coefficient निकाल रहा है ना हाइलो मेथड से. यार वो बुक में जो given है ना वो that is a little difficult, so अच्छा, and but ma'am the also mentioned that is not given in the book. This part is not given in the book. That's why the notes. but just correct me. इसमें जो formula लिखा है, I'm trying to associate that with this. तो हम्म, नहीं तो मैं I will just refer to what you are talking about here. It हम्म, says slope coefficient is equal to difference between cost associated with highest and the lowest observation of the cost driver divided right. by difference between highest and lowest observations of the cost driver. हाँ, so अगर इसमें आपका cost driver, ओके, सो इन दिस केस अगर आपका कॉस्ट ड्राइवर आपका सेल्स वैल्यू है, लेट्स से, तो आपने सेल्स वैल्यू से डिफरेंस वो क्रिएट कर लिया, हाँ. एंड जो कॉस्ट थी, कॉस्ट इन इटसेल्फ वाज 72,000 एट हाईएस्ट पॉइंट एंड 60,000 एट लोएस्ट पॉइंट. सो 72 माइनस 60 न्यूमरेटर, एंड देन जो ड्राइवर, अगर आप इसमें, या इन दिस केस इफ यू आर कॉलिंग इट अ ड्राइवर, तो सेल्स वैल्यू इज 140,000 माइनस 80 which is 60,000, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. So my question is the answer going to be same or we're talking about two different things here? High-low method I उसमें think that is different. Whatever is given in the book, that is different because मैम ने ये clearly लिखवाया था. If you look ये here different. as well, हाँ. कि under this method, difference between the highest and lowest volume is divided by the difference between the sales value at the highest and lowest volume. Okay, got it. ठीक है. Makes sense. Then we'll refer this one. So in the question we have to assess ki what kind of information is available and which method of the four methods we can apply.
ठीक है. it's become sales value divided by the volume. Difference of nahi, volume divided by the sales value. And Volume volume is divided. nothing but, yeah. Okay. Fine. Okay. Quite And volume in tricky. this case is your mixed cost itself. I don't know if we will, see more examples around it. Probably in the chapter 13, we will see some examples around variable or, sorry, mixed cost example. Then we would be able to, understand this more in a better way. I could not find, I tried solving many questions, but I could not find an example, suitable example, which could, fit in here. So the moment I'll find, maybe I'll also highlight to you guys that solve this question. You'll understand the concept very clearly Rachita, when you can you apply the just funda. scroll up again? 1 minute, बस. ठीक है, thank you. बस. Okay. Moving on to the next method, which is analytical method. So an experienced cost accountant tries to judge empirically what proportion of mixed cost would be variable and what will be fixed. The degree of variability is ascertained for each item of semi-variable expenses or variable expenses. So in the example, for August 2023, mixed cost was 3,000. Okay, given in the question, and degree of variability was 70%. That was also given in the question. So now the question is, in September 2023, if production is likely to increase by 50% in the month of September 2023, so how much my mixed cost will increase? Okay. Proportion is increasing, meaning the overall mixed cost is increasing. Like 3,000 is increasing by 50%, right? Which is 4,500. And 4,500 ka 70% will calculate then. Is it? नहीं 4,500 का 70% नहीं था इसमें. So 3,000 का 70% था आपका. So आपकी जो जैसे प्रोडक्शन है वो है 3,000 और वो 2,100 हो गया. 2,100 एंड देन उसका 50% ले लिया आपने. Increase होगा 1.5 से 1050. Am I correct? Yes. How do we figure out ये 50% increase होगा? Like ये क्वेश्चन में 21. गिवन है ना. अच्छा ये if production is likely to increase by 50% in this month. Yes. Okay. Yes. So 4050 is what is mentioned in the question? नहीं that is what we have calculated. अच्छा. So अगर आप यार डिग्री ऑफ वेरिएबल 3150 आ रहा है वैसे. नहीं सुनो आप एक बार क्या 3150 क्या आ रहा? न्यू वेरिएबल कॉस्ट. क्योंकि आप 2150 को जब 50% बढ़ाओगे तो 1050 आएगा, राइट? अब आप इसको 2 ये आपने लिखा भी हुआ है 1050. नहीं डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है कि इन दिस 3,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 70% है. करेक्ट, ठीक है. व्हिच इज 2100. हाँ, अब उन्होंने बोला सितंबर 2021 इफ प्रोडक्शन इज लाइकली टू इंक्रीज बाय 50%. तो Correct. 2100 का आप या तो 50% निकाल लो या सीधा 1.5 कर लो. करेक्ट, तो वो 3150 आ रहा है. हाँ आपके बिल्कुल उसमें भी आप देखो. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप. बिल्कुल सही कह रहे हो. सो 3150 एंड देन आप उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड करोगे ना वापस से. ओह, समझ Yeah. गए आपको. तो यू इन द क्वेश्चन यू विल हैव टू टेल द टोटल इम्पैक्ट ऑफ दैट इंक्रीज, राइट? सो फिर तो हम 3000 का 150% ही कर ले, which is 4500. नहीं तो वो रॉन्ग हो गया ना आपका. Okay, आपकी जब fixed डिग्री sale ऑफ रहेगी. वेरिएबिलिटी बताई हुई है Okay, इन okay. द
सो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी में यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट is your 70% is what it is See trying to here highlight. only And the variable will change. Fixed will stay. Yes, yes. yes. And So as you know that Hmm. fixed cost remains same for a relevant range, okay? Got it. And in the question, if the question is, let's say, silent about whether we are in the relevant range or not, we'll assume we are in the relevant range. Got Okay, we will not increase the fixed cost proportionately. तो फिर 900 ऐड हो जाएगा which will give us 400. ठीक है. Correct. Okay. So, any question by anyone else? here is the only variable cost will impact it, no? That's why we are increasing Yes. only the Yes, because with the change in the production level, there is change in your variable cost directly proportion to the change in the production level. So the production level changed by 50%. Okay. So variable cost also will change by 50%. okay. और जो 3000 का 70% लिया देन उसको लेट्स से 1.5 कर दिया एंड उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट क्या ऐड किया. सो मैं इसको ना एक बार ढंग से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ. हाँ. in the question mixed cost is given as 3000, right? हाँ. सो 3000 का आपने सबसे पहले 70% कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया 21. 21. ठीक है. ठीक है, तो अब 3000 minus 2100 is your fixed cost, हाँ. which is 900. हाँ. ओके, तो FC आपने 900 लिख लिया जी. एंड आपका वेरिएबल कॉस्ट है 2100. अब सिंस इफ द प्रोडक्शन इज लाइकली टू इंक्रीज बाय 50% इन दिस मंथ, ठीक है, तो प्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेंज से आपका वेरिएबल Variable कॉस्ट cost भी रिलेटेड होता है. या तो अब क्योंकि वो 50% से इंक्रीज होगा तो वी विल ऑल्सो इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट बाय 50%. तो इधर वी कैन राइट 1.5. हाँ. हाँ, और add either 1050 to the cost. yes, yes. So it will give us the answer 3150. 3150. Then Okay, we're and then adding in this we will cost. add fixed cost as well. So the हाँ. final answer will be 4050. हाँ जी. ठीक है. Got it. Okay, cool. So we can move ये on ना to the मैंने क्लास अटेंड करी थी तो मुझे याद है ये तो आधी तो अटेंड ही नहीं करी है ना तो वो मिस होता है पर ये मुझे अच्छे से याद है चारों. मुझे सिर्फ यही याद है. हाँ. अटेंड तो मैंने भी की थी क्योंकि हाई लो वाला वो दिस डिवाइडेड बाय दिस में बहुत डिफिकल्ट था. okay. I hope it is clear to you now, Prakash ji. या Okay, so moving on to the third method, which is comparison by period or level of activity method. Okay, under this method, the variable overhead may be determined by comparing two levels of output with the amount of expenses at those levels. Okay, since the fixed element does not change, the variable component may be calculated with the help of the following formula. So change formula is the change in output of expenses divided by change in quantity of output. Just a second. Can you guys enter Shwetal in this meeting? I don't know how to do that. मुझे पिछले बार रिक्वेस्ट आई थी इस बार नहीं आ रही है. Meetings. Okay, मुझे so भी नहीं. I have let her in. Okay. I hope my screen is visible again. Yeah. Okay, cool. So yeah, so change in amount of expenses divided by change in quantity of output. So अब इस क्वेश्चन में हमें जनवरी फरवरी 2 months are given and उसमें हमें यूनिट्स दी हुई है. जैन में वी प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स एंड फरवरी में वी प्रोड्यूस 140 यूनिट्स एंड मिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है दैट इन जैन इट वाज 260 एंड इन फरवरी इट इज 300. ठीक है, सो
अब आपने मिक्स्ड कॉस्ट का जब डिफरेंस निकाला 260 minus 300 gives you or maybe rather we should say 300 minus 260 is your 40. Okay, and then units का डिफरेंस निकाला 140 minus 100 units, so that is also 40. Okay, so आपका चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस आ गया आपका 40, क्योंकि आपका मिक्स्ड कॉस्ट 300 minus 260 एंड चेंज इन क्वांटिटी आउटपुट आ गया 40. ठीक है, तो नाउ इन दिस 260, so your variable cost under 260 will be 40% of 260. कैलकुलेट करना एक बार यार, क्या आ रहा है? 104 कुछ नहीं आना चाहिए 104 104 इसमें VCFC 100 and 160 दिया हुआ है मैम ने, आई डोंट नो हाउ. 100 and 100 in is VC and FC is 160. Pooja, if you have noted it कि वो how did we calculate exactly? बेसिकली इसमें मैं फिक्स नोट्स ढूंढ कॉस्ट लेती हूँ फिक्स था, आई थिंक सो 160 था, तो मिक्स कॉस्ट दिया था तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमने निकाल लिया उससे करके, मतलब मैं जितना एक मुझे मिनट अपने नोट्स ढूंढती हूँ कॉस्ट गिवन होगा ना, क्या नाम है शेतल, सो अगर फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होगा तो देन मिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट ही नहीं आएगा ना आपके पास, जब आपको फिक्स्ड पता ही है मिक्स्ड में से फिक्स्ड कितनी है, तो देन आपको दोनों को सेग्रीगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मिक्स्ड कॉस्ट वाले में प्रॉब्लम ही है कि दोनों कॉस्ट एक साथ दी हुई है एंड यू हैव टू सेग्रीगेट द कॉस्ट टू अराइव एट द राइट कॉस्ट एट द नेक्स्ट आउटपुट लेवल इन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका. तो यार मुझे नोट्स नहीं मिल रहे अपने, बट इसमें देख के ही समझ लेते हैं. इसमें देख के समझे कैसे? अच्छा, ओहो यार, आई एम सो स्टूपिड. सो 40 आपका चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस था डिवाइडेड बाय 40 आपका चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट था. सो आपका 1 with every change of output 1 rupee 1 will change in the cost. तो यहाँ पे आपका in January month, since your production was 100 units, तो 100 multiplied by 1 is equal to your variable cost. So और टोटल मिक्स्ड कॉस्ट दी हुई थी 260, तो 260 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी 160. ओके, एंड देन फेब्रुअरी में बिकॉज आपका आउटपुट था 140 और 140 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू 140 VC एंड 300 में से 140 VC हटा दोगे तो अगेन फिक्स्ड कॉस्ट इज योर 160. ठीक है, यहाँ किसी को डाउट कोई? अगर ये 0.5 आता तो हम 0.5 से मल्टीप्लाई 0.5 करते से मल्टीप्लाई करते. ये दिस इज अ कोइंसिडेंटल थिंग कि इसमें 1 आया है मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. मल्टीप्लाई ओनली इन वेरिएबल How कॉस्ट. is 1 is coming here? सो प्रकाश जी, एज वी टोल्ड कि जनवरी में आपका आउटपुट है 100 यूनिट्स और मिक्स कॉस्ट है 260. ओके, एंड इन फेब्रुअरी योर आउटपुट इज 140 एंड मिक्स्ड कॉस्ट इज 300. So the formula says change in amount of expenses. So in the numerator you will write the difference of the expenses. So which is in this case 300 minus 260 gives you 40. Then in the denominator change in quantity of output is again 40 because 140 February minus January 100 gives you 40. So 40 divided by 40 gives you 1. Okay. Okay.
So now you simply, whatever comes here, like in this case 1 has come and Pooja mentioned if it was 0.5, so आपने उसको simply multiply करना था units of production से, okay, and unit of production क्योंकि Jan में 100 थी, तो 1 multiplied by 100 is your gives you 100, and then your variable cost of the total Jan की mixed cost was 100, and 260 minus 100 gives you 160, which is your fixed cost. Similarly, when we come to February, 140 units multiplied by 1 gives you 140 as variable cost, and 300 minus variable cost 140 gives you fixed cost, which is 160. Fine. Hopefully, she offered the same kind of So easy if question in the exam as well. yeah, so this will be very, I mean, in the question you will find it, key difference of output or ये, so आप लोग easily या तो degree of variability के बारे में बात करेगा, या वो change in expenses और output के बारे में बात करेगा. So you will know कि you will not have to maybe mention in the question कि you are applying this method, but in your mind you should know कि this method, through this method I can segregate the semi-variable and the semi-variable cost into variable and fixed cost clearly. Got it. और Rachita, one more question. I want to yes, ask कि ये जो questions हम यहाँ पे for as example solve कर रहे हैं, वो क्या मैम की activity वो जो worksheet दिया उसमें है, या फिर where are these questions if we were to like refer back to them and practice ourselves again? okay, so this is what I was mentioning in the beginning of the call कि मुझे अभी तक ना questions मिले नहीं जहाँ पे ये मतलब वाले question. मैम की activity वाली उसमें तो certainly होंगे, but हाँ since I am solving numerical straight from Horngreen first, हाँ so वहाँ अभी मुझे नहीं मिला है, so Horngreen में मिला तो I'll tell you, otherwise मैम की question book में तो I am assuming 100% है, because अच्छा इसके बाद हमने questions भी solve किए थे in the class. So हाँ. one such question is assignment 6 question 2. Maybe you So can then, try that. okay, then this would be assignment 6 Yeah, of question 2. chapter 11. हाँ, chapter 11 would be assignment 6. ठीक है. So all the assignments in a single file only, na, which she shared at the beginning of the course. Yeah. Yes. Fine. ठीक है. Thank you. We Okay, can continue. okay. So moving on to the fourth method, which is least square method. So in this method, this is the best method to segregate mixed cost into its fixed and variable component. This is a statistical method and is based on finding out a line of best fit for a number of observations. The method uses a linear equation, and the linear equation is y is equal to mx plus mx plus c, where m is your variable cost per unit, okay, c is equal to total fixed cost, y is equal to total mixed cost, ठीक है, and x is equal to volume of the output. right. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में अगर आपको दो कंपैरेटिव नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ लेट्स से इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक वॉल्यूम ऑफ आउटपुट दिया हुआ है आपको, ठीक है, और एक मिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है आपको, तो then with the help of this equation y is equal to mx plus c, you will have to calculate the rest of the variable. I think we can also remember this by कि जो लेफ्ट साइड पे होगा वो टोटल कॉस्ट होगी, राइट साइड पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगा. फिक्स्ड इज सी और वेरिएबल वो होगी जो यूनिट्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है. हाँ, मतलब m and x are getting multiplied to each other, so m is your variable cost and volume of output आपका x है, तो when you multiply variable cost with volume of output, that gives you total variable cost, and then c is your fixed cost, so plus c, that gives you total cost. I just hope no doubt in this, or maybe Yeah. इसको No मैं doubt. अगर
इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस इक्वेशन टर्म, अगर मैं y को टोटल कॉस्ट से रिप्लेस कर दूं, देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू m विच इज योर वेरिएबल कॉस्ट, vc ही लिख रहे हूँ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स को वी आर डिनोटिंग विद x, देन प्लस c को मैं सीधा Fixed फिक्स्ड cost. कॉस्ट ही लिख रहा हूँ. सो दिस फॉर्मूला इज कैन बी seen this as like this also. Correct. ठीक है, so no doubt we can move on. Okay, Yes. example, let's move on to the example. So इसमें हमें कैपेसिटी परसेंटेज दी हुई है 60% एंड 80%, दो परसेंटेजेस पे प्लांट रन कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ labor hours is 150 and 250. Mixed cost is your 1200 and 1275. Okay, तो in this case mixed cost आपका, क्योंकि हमने बोला है मिक्स्ड कॉस्ट इस केस में आपका टोटल कॉस्ट होगा. ठीक है, तो क्योंकि उसी में ही आपका वेरिएबल और फिक्स्ड पोर्शन घुसा हुआ है, तो y इज इक्वल टू योर मिक्स्ड कॉस्ट होगा. सो अब और मेरी वॉल्यूम जो दी हुई है वो 150 दी हुई है एट 60% कैपेसिटी, एंड वॉल्यूम जो मेरी 80% कैपेसिटी पे दी हुई है वो दी हुई है 200. ओके, एंड मिक्स्ड कॉस्ट इज 1275. अब इसको हम इक्वेशन में अगर पुट करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c में, तो y इन एट 60% लेवल इज 1200. ठीक है, क्योंकि वही मेरी मिक्स्ड कॉस्ट है, दैट इज द टोटल कॉस्ट वी आर कंसिडरिंग हियर, इज इक्वल टू 150. आपका जो वॉल्यूम दी हुई है 150, एंड क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता है तो दैट इज m. ओके, देन प्लस मुझे फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट भी नहीं पता है तो मैंने c लिख लिया. तो मेरी एक इक्वेशन बन गई है 1200 इज इक्वल टू 150 m प्लस c, एंड फिर मैं 80% कैपेसिटी लेवल पे देख रही हूँ कि मेरी ये सेम इक्वेशन कैसे बनेगी. तो क्योंकि वहां पे मिक्स्ड कॉस्ट मेरी 1275 है, तो टोटल कॉस्ट मैंने एज्यूम कर ली 1275. सो 1275 इज इक्वल टू 200 विच इज द वॉल्यूम at 80% capacity. So 200 multiplied by m, which is my variable cost, plus c, which is my fixed cost. So another equation is 1275 is equal to 200 m plus c. अब इन दोनों इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व किया करते थे, वो प्लस माइनस मतलब साइन चेंज करके हम दोनों को सॉल्व किया करते थे इक्वेशन को, तो आंसर आ रहा है मेरा 75 इज इक्वल टू 50 m. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? 75 इज इक्वल टू 50 m कैसे है? नहीं, Okay. कोई डाउट नहीं. ठीक है, तो फिर मैंने मुझे कोई बता दे. बेसिकली दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप. ओके फाइन, ठीक है, गॉट इट. ठीक है, तो 75 इज इक्वल टू 50 m. सो अब मेरे को m निकालना है, तो 75 डिवाइडेड बाय 50, 1.5 मेरा m आ गया. ओके, और m मेरा क्या था यहाँ पे? m मेरा था वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ठीक है, कॉस्ट Per unit. पर यूनिट. और मुझे अब अगर मुझे पर यूनिट दी हुई है 150, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट. 225. थैंक यू सो मच. एंड टोटल कॉस्ट है 1200. तो 1200 में से आप अगर 225 लेस कर लोगे तो आई थिंक 975, दैट इज योर Correct. फिक्स्ड कॉस्ट. Correct. तो सी I have- आपका आ गया फिक्स्ड कॉस्ट. I have one very बहुत ही अजीब सा डाउट है ये 1.5 जो आया है, that is what? That's the दैट इज change. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. Per unit. Yes. That's variable cost per unit. And यहाँ पे Correct. हमने वॉल्यूम क्योंकि 150 है, we have multiplied the per unit cost into volume, which has come for a total production. And ठीक है, got it. And हमको mixed cost for total production पता है. I was thinking it as per unit, hence I was getting confused. ठीक है. नहीं, मिक्स कॉस्ट हमेशा आपको टोटल होगा, क्योंकि Production का होता है, ठीक है. हाँ, जो जिस प्रोडक्शन लेवल पे हैं हम,
उस हाँ प्रोडक्शन लेवल का टोटल होता है जनरली मिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एज यू नो फिक्स्ड कॉस्ट आपका चेंज नहीं होता है, तो मिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट आपका पर यूनिट लेवल पे मैंने ऐसा एग्जांपल नहीं देखा है, आई डोंट रिकॉल एनी नहीं सच नहीं एग्जांपल। ठीक है या मेक सेंस। तो ये तो थे आपके जो 4 मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग योर मिक्स्ड कॉस्ट। ओके, अब इसमें से मैम ने एक चीज इस चैप्टर में से अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मेथड्स नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शंस को और बोला है कि वो आएगा फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शन अगर हम मैं डिफाइन करें, मतलब नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस न्यू टॉपिक। सो व्हाट इज नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शन? इट इज cost functions are not always linear. A non-linear cost function is a cost function for which the graph of total cost is not a straight line within the relevant range. ठीक है, तो some of the examples of non-linear cost functions वो है आपके पास। For example, economies of scale, ठीक है, produce double the number of advertisement for less than double the cost। तो जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग ही ये होता है कि आप बिकॉज ऑफ द हाई स्केल आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही होती है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मेन कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम आपकी प्रोडक्शन जो है वो डबल कर रहे हैं, तो मेरी जो अगर लेट से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की कॉस्ट थी मतलब जो है वो लेस देन डबल, ठीक है, तो वो नॉन लीनियर फंक्शन हो गया। लीनियर होता है तो प्रोपोर्शनेट होता है ना। आई होप यू ऑल नो कि लीनियर फंक्शन कैसे वर्क करता है, कि वो यस एकदम प्रोपोर्शन में आपका वर्क करता है, राइट? कि अगर आपकी लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट इन प्रीवियस एग्जांपल 1.5 पर यूनिट थी, तो जैसे जैसे आपका यूनिट बढ़ता जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 1.5 बिल्कुल लीनियर चलेगा। ग्राफ पे जब आप प्लॉट करने लगोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप 10 यूनिट्स पे आपका कॉस्ट 15 रुपीज आ रहा है, ठीक है, तो जब आप इसको 20 यूनिट्स करोगे तो आपका कॉस्ट मतलब क्योंकि हमने प्रोडक्शन अब डबल कर दिया है तो आपका कॉस्ट एकदम लीनियर बिहेव करेगा और वो हो जाएगा 1.5 इंटू 20 इन दिस केस 30। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है वो लीनियर फंक्शन बोलते हैं उसको व्हेन इट बिहेव्स लाइक दिस। ठीक है जी, हाँ जी गॉट इट। मतलब थोड़ा ग्राफ को काइंडली एडजस्ट, मतलब सो दैट इज हाउ यू प्लॉट अ लीनियर। सो नॉन लीनियर में क्या होता है, आपका एक एग्जांपल जो दिया है इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपने आउटपुट डबल किया लेकिन बिकॉज वी वर एंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेरा कॉस्ट उस ट्यून में डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनेटली नहीं इंक्रीज हुआ, वो डबल से कम रह गया। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन। तो नॉन लीनियर में आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लीनियर नहीं होता, राइट? वो इट कैन बी कर्व्ड, इट कैन बी स्टेप, जैसे स्टेप वाइज आपका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा होता है। इट कैन बी दैट ऑल्सो, इट कैन बी पोर्शन ऑफ इट कैन बी स्ट्रेट बट मे बी एंड में कहीं पे कर्व्स लगे हुए हैं, तो दैट इज हाउ योर non-linear function, something which is not basically in a straight line is your non-linear function. ठीक है, so then moving on to the next example of non-linear function is quantity discounts. So direct material cost rise but not in direct proportion to increase in the quantity due to the non-linear relationship caused by the quantity discount. So अगर मेरे पास ऑर्डर आया 100 यूनिट्स का, ठीक है, और मैंने बोला मैं 100 यूनिट्स आई गिव एट 10, ठीक है, बट इफ यू इंक्रीज द ऑर्डर टू लेट्स से 150 यूनिट्स मे बी आई कैन गिव यू 50 पैसा डिस्काउंट, सो आई विल गिव यू 150 यूनिट्स एट 9.5, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10 रुपी 9.5। तो मेरी यूनिट्स जब इंक्रीज करी तो मेरी प्रोपोर्शनेटली 10 के प्रोपोर्शन में मेरा इंक्रीज नहीं आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट मैंने 0.50 पैसा का डिस्काउंट दे दिया था। तो अब नाउ दैट विल बिहेव इन अ नॉन लीनियर फैशन। ठीक है,
देन स्टेप कॉस्ट फंक्शंस, स्टेप कॉस्ट फंक्शन में आपका रिसोर्सेज इंक्रीज इन लॉट साइजेस नॉट इंडिविजुअल यूनिट्स। इसका सबसे क्यूट एग्जांपल है स्टेप कॉस्ट फंक्शन का आपका फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को हम बोलते हैं कि अप टू अ सर्टेन रेंज वो सेम रहती है, राइट। लेट्स से मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, उस मशीन में मेरे 1000 आवर्स थे। सो मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट मशीन इज 1000 आवर्स। तो अब अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है टू बियॉन्ड 1000 आवर्स, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, टू मे बी बाय अनदर मशीन। ठीक है, अब वो मशीन हो सकता है सिमिलर कैपेसिटी की बाय करूं मैं, हो सकता है मैं स्मॉलर कैपेसिटी की या उससे भी डबल कैपेसिटी की मैं मशीन वो करूं, जो नेक्स्ट मेरी मशीन होगी। बट मेरी अप टू 1000 आवर्स मेरी कॉस्ट एक सर्टेन वे में चलेगी, ठीक है, अप टू 1000 आवर्स। एंड देन क्योंकि मैंने न्यू मशीन परचेज कर ली है, तो न्यू मशीन की कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, हो सकता है वो कॉस्ट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दे एंड कॉस्ट ऐसे बिहेव करने लगे। ठीक है, स्टेप फंक्शन में तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है मेरी, वो जनरली इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टेप कॉस्ट फंक्शन। गॉट इट। ठीक है, देन अभी हम इसके एग्जांपल भी देख लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आगे फोर्थ एग्जांपल आपका लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व में भी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है एज आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अ फंक्शन दैट मेजर्स हाउ लेबर आवर्स पर यूनिट डिक्लाइन एज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज वर्कर्स आर लर्निंग एंड बिकमिंग बेटर एट देयर जॉब्स। तो अगर मैं कोई चीज को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई विल टेक मोर टाइम टू डू इट, राइट। जब मैं उसी चीज को मैं लेट्स से थर्ड फोर्थ 10th 15th टाइम कर रहा हूँ, तो जो मेरे को फर्स्ट टाइम उस चीज को करने में टाइम लगा था, 10th एंड 15th टाइम तक मेरा एक लर्निंग कर्व डेवलप हो चुका होगा और उसकी वजह से मुझे सेम टाइम नहीं लगेगा, मुझे कम टाइम लगेगा। सो वो जो कम टाइम मुझे लग रहा है वो दैट इज लर्निंग कर्व। तो बेसिकली मेरा जो टाइम है वो लीनियर फंक्शन में बिहेव नहीं कर रहा। एंड ये जो एग्जांपल है ये लेबर इंटेंसिव एग्जांपल ज्यादा है, क्योंकि मशीन में लर्निंग कर्व थोड़ा सा कम लगता है। हाँ, मशीन में लर्निंग कर्व ये हो सकता है कि जब नई मशीन है तो उसको चलाने वाला जो बंदा है, सिंस उसका लर्निंग कर्व अभी स्लो है, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम लग रहा है मशीन को स्टार्ट से लेके उसको प्रोडक्शन। जैसे आज का सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल है व्हेन वी वर स्टार्टिंग द मीटिंग ऑन वेबएक्स, because it was first time for all of us, it took more than we usually when we join through Zoom, Gmeet or any other meeting, right? So वो अपना learning कर्व हो गया। अब next time when we will be on a WebEx meeting, so वो relatively कम time लेगा, ठीक है। तो then आपका moving on to the next example of non-linear cost function is experience curve, ठीक है, measures the decline in the cost per unit of various business functions as the amount of these activities increases. It is a broader application of the learning curve that extends to other business functions in the value chain, such as marketing, distribution, and customer service. तो लर्निंग कर्व जनरली आपका मशीन और प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, दे आर ट्राइंग टू से। तो एक्सपीरियंस कर्व जो है वो बाकी सारे आपके जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बाकी सारे फंक्शंस में जब आप इसी लर्निंग कर्व को अप्लाई कर रहे हो तो यू कॉल इट एक्सपीरियंस कर्व इंस्टेड ऑफ लर्निंग। आई होप ये पांचों एग्जांपल क्लियर हो गए थे आप लोगों यस को। यस। ठीक है, तो अब इसमें हमने जो एग्जांपल दिया हुआ है पैनल ए में, एक एग्जांपल है इसमें इफेक्ट्स ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स ऑन स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फंक्शन। तो अभी हमने ये पढ़ा था ना कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट अगर डिस्काउंट वगैरह की वजह से मेरी डायरेक्ट मटेरियल में चेंज आएगा, तो यहाँ पे अप टू 10,000 यूनिट मुझे बोला हुआ है और मे बी अप टू 25,000 यूनिट कि मेरी जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो है 25 पर यूनिट, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट उसी तरीके से बढ़ेगी
सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, अप टू 1000 यूनिट्स मेरी जो कॉस्ट है वो 25 पर यूनिट है। तो आपकी कॉस्ट कितनी मैप करी हुई है इन्होंने यहाँ पे? 25,000 25,000। ठीक है। देन नेक्स्ट है 1000 यूनिट के बियॉन्ड मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो 1000 रही है, वो नेक्स्ट 1000 15। यूनिट्स तक। हाँ, नेक्स्ट 1000 यूनिट्स तक वो मेरी 15 रुपी पर यूनिट ही आ रही है। तो जब मैं 1000 से 2000 में मूव करूंगी तो मेरा जो स्लोप है वो थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ स्टीप वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, राइट? मतलब थोड़ा सा उसको आई डोंट नो लो लेस स्टीपर हो जाएगा वो, जिसकी करेक्ट। वजह से जो मेरा जो लीनियर जो फंक्शन है वो लीनियर ना रह के अब नॉन लीनियर होगा, क्योंकि उसका स्लोप चेंज हो गया फ्रॉम 1000 यूनिट्स टू 2000 यूनिट। अब वो 15 पर यूनिट के हिसाब से बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट 1000 यूनिट्स के लिए यानी कि फ्रॉम 2000 टू 3000 यूनिट कॉस्ट जो है वो वो आपका 10 पर यूनिट है। तो अगेन वो और थोड़ा कम आपका स्टीप हो गया इसमें। ठीक है। So again it is so basically pictorial example of non-linear function. Prakash ji, were you able to make out what I was telling? Yes. Am I audible? पता नहीं Yes, network. yes, yes. Okay. So then another step variable cost function का एक इन्होंने graphical representation दिया है। तो हमें ग्राफिकल ही बनाना होगा क्या एग्जाम में, या वो नहीं, एग्जाम में अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए होंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रैक्टिस एवरीवन हैज टू डू इट विदाउट फेल, क्योंकि वहां पेपर में बैठ के अगर हम ग्राफ बनाने लगेंगे तो आई एम 100% श्योर एक तो वो लर्निंग कर्व की वजह से सबसे पहली बार कर रहे होंगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा, और क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट टाइम को ग्राफ वो कर खा जाएगा। जाएगा। तो हाँ, खा जाएगा। जब हम और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते थे वो कहीं ना कहीं हमारा पेपर पे इम्पैक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए सजेशन यही है कि हमने when in the previous classes we kind of सॉ की कहीं पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली विच चैप्टर इट इज रिलेटेड टू, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू प्रैक्टिस आल्सो। So that particular section what we are आप studying right now, that is having carrying the 35 marks. यस 35। Have you seen, have you seen that what is the single question marks weightage in the question paper? उस दिन हम पेपर में एनालिसिस कर रहे थे ना। Mm. So Prakash ji, we had opened previous year question papers and उसमें हमने नोटिस किया था कि हमने 3-4 पेपर्स देखे थे, तो एवरेज किसी क्वेश्चन पेपर में 14, किसी में 18, किसी में 20 एंड किसी में 23। सो एवरेज मान के चलिए 18 मार्क्स का थ्योरी आ रहा था आउट ऑफ दिस, but this 18 mark was out of 70. Correct me if I'm wrong, everyone. You're right. Yeah. So 18 to 20 marks of theory was coming out of 70 marks, and the remaining 50 mark was for practical or the quantitative based questions. Now, the bifurcation of each question, I would not know, but generally for this paper, we will be having 6 to 7 main questions, and 6 to 7 main question comprises of 70 marks in total, out of which 20 marks is theory and let's say 50 marks is practical. तो आप समझ जाओ वो 7 questions में से same ratio, like 5 questions तो quant based होंगे ही होंगे, and एक question के अंदर 2 या 3 further sub questions हैं, bifurcations हैं. Means 25 marks for the practical portion of that management accounting. Yeah. At least. Yeah. Fine. So with this आपका chapter 10 is over, ठीक है? Now we will move towards chapter 11. इसमें जो हम करेंगे अभी आज वो मोस्टली आपका थ्योरी होगा, ठीक है? लेकिन
इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं उसी थ्योरी को समझ के, ओके ठीक है। बहुत रिलेवेंट थ्योरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरी छोड़ दी तो क्वेश्चन कर लेंगे, वो कर ही नहीं पाओगे फिर। इसीलिए in this class we'll focus on the theory of this chapter, but I expect all of you to practice questions whenever you get time, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही लर्निंग कर्व वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, गॉट ठीक है। So chapter 11 from Holmgren is about decision making and relevant information. So Rachita, in this, sorry. Can I interrupt yes, just 1 minute? yes, yes, I was saying कि chapter 10 हम chapter 10 में आपने बोला कि हम जितने questions मैम ने दिए हैं, that is assignment 6, we will try to solve that. But since बहुत सारी चीजें book में mentioned नहीं है या अलग तरीके से mentioned है, तो the only thing is we will be only practicing assignment number 6, क्योंकि book में जो questions भी दिए होंगे that would be in sync with the content that is there in the book. So if you have हाँ, बुक में solved ना लीनियर के इक्वेशंस और पता नहीं बहुत सारे बहुत इंजीनियरिंग मेथड, ये complications है, मेथड, वो हाँ मेथड, तो यस, चैप्टर 10 के लिए आप हॉर्नग्रेन के न्यूमेरिकल्स प्लीज डोंट रेफर, हाँ बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज वेरी कंफ्यूज जब मैंने देखा, तो उनमें से ये ढूंढ पाना कि नॉन लीनियर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको चैप्टर 10 से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर मैम के असाइनमेंट में मिल रहे हैं तो डू दैट। ठीक है। रचिता, आप मुझे ना ये मतलब जो इसके आपने सॉफ्ट कॉपी में बनाते हो ना आप नोट्स, दैट गुड नोट्स, वो मुझे आप शेयर कर देना सेपरेटली, so that would be easy, specifically chapter 10 तो एटलीस्ट। हाँ, मैं चैप्टर 10 तो डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, बट अदरवाइज भी अगर आपको जब भी जरूरत लगती है you can always हाँ, ठीक Yes, you can continue. Sorry. Yep, no issues. So now chapter 11, decision making and relevant information. Information and the decision process. So इसमें आप you will end up कि mostly जो question आ रहे होंगे ना, आपको किसी ना किसी टाइप का decision ही लेना होगा, and वो decision आपका based होगा किसी ना किसी टाइप की relevant cost पे, ठीक है। हमने हमारी इस चैप्टर में जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो थ्योरी हमें सोचने पे मजबूर करेगी हर क्वेश्चन के टाइम पे कि कौन सी मेरी जो कॉस्ट है वो रिलेवेंट कॉस्ट है फ्रॉम डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। जितनी भी नॉन रिलेवेंट कॉस्ट है हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं इन द क्वेश्चन, बट अगर हमने जजमेंट ही गलत कर दी कि कौन सी कॉस्ट को इग्नोर करना था और कौन सी को नहीं करना था, वो जजमेंट में फेल हो गए अगर हम, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि यार फिर टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं तो फिर सारी कॉस्ट को ही मतलब दो डिसीजंस में कंपेयर कर लिया करूंगी या करूंगा। तो यस, आपको अगर वहां पे अपनी जजमेंट कॉल पे डाउट हो तो उस टाइम पे सारी कॉस्ट को कंपेयर कर लेना, अपने आप रिलेवेंट कॉस्ट दिखने लगेगी। रिलेवेंट कॉस्ट वो होगी जो आपकी चेंज हो रही होगी विद द टू डिसीजंस, ठीक है। ये इस चैप्टर का जिस्ट है। अब इसी जिस्ट को हम अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे कि कैसे वो मतलब रिलेवेंट कॉस्ट को हमने पॉइंट आउट करना है एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, ठीक है। सो मैनेजर्स यूजुअली फॉलो अ डिसीजन मॉडल फॉर चूजिंग अमंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। A decision model is a formal method of making a choice that often involves both quantitative and qualitative analysis. तो डिसीजन मेकिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको करना होता है। वाइल क्वांटिटेटिव बहुत इजी होता है आपके लिए क्योंकि आपको वो सीधा में अगर मैं एक तरीके से बोलूं तो टैंजिबल फॉर्म में दिख रहा है कि आपकी लेट्स से मेक और बाय डिसीजन है कि इसको अपनी फैक्ट्री में मेक करें या बाहर से बाय कर लें, तो वो नंबर्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आपको, तो वो आपके क्वांटिटेटिव होता है। और क्वालिटेटिव थोड़ा सा इंटेंजिबल हो जाता है कि उस डिसीजन की वजह से लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर से इसको बनवाऊंगी प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो उसकी वजह से जो मेरी एग्जिस्टिंग लेबर है हो सकता है मुझे उनको टाटा बाय बाय बोलना पड़े, उसकी वजह से रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज जो है
उनके मोरल पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो उनके मोरल पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्वालिटेटिव इम्पैक्ट है, तो कई बार वो मिसजज हो जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस में जो हम सॉल्व करेंगे, हमें क्वांटिटेटिव पे ही फोकस रख के अपना एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व कर, ठीक है। Then management accountant analyze the present relevant data to guide managers decision. तो जैसा कि मैंने बोला कि relevant cost और स्पेशली प्रेजेंट रेलेवेंट कॉस्ट से इनका मतलब है कि जो आपने कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर ली है ना, वो आपकी प्रेजेंट नहीं, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आप, क्योंकि वो कॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट, ठीक है। तो संक कॉस्ट ना आपकी डिसीजन मेकिंग को चेंज नहीं करती है। आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो या ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो, आपकी वो कॉस्ट ऑलरेडी हिट हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब एक तो हमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, दूसरा प्रेजेंट रिलेवेंट डेटा का ध्यान रखना होता है, ताकि हमारा जो डिसीजन है वो नियर टू परफेक्ट हो रहा हो, एटलीस्ट हमें ऐसा लग रहा हो कि यस दैट इज द राइट डिसीजन वी आर टेकिंग। देन मैनेजर्स यूज अ 5 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मुझे इस पे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी क्वेश्चन आना होगा ना, तो हो सकता है ये 5 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे आ जाए, ठीक है। और ये हमारा हमने प्रीवियस चैप्टर्स जो किए थे उसमें भी था कि जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो कौन से 5 स्टेप आपके इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो स्टेप 1 होता है आपका आइडेंटिफाई मैं द एक बात प्रॉब्लम। बोलूं कि मुझे ना ये बहुत ब्लर ब्लर सा दिख रहा है 5 स्टेप डिसीजन मेकिंग, तो ये हाँ, सबको आप इसे दिख बुक रहा है में से कि करेक्टली देख सकते हो, ये और सबको ब्लर्ड ही दिख रहा है, मुझे भी। ये मैम ने जो शेयर किया है वही पीपीटी है जो रचिता शो कर एग्जैक्टली रही है, आप ओके उसमें ओके पढ़ लेना, नहीं तो हॉर्नग्रीन में ये कॉन्ग्रेंट है। क्लियरली गिवन है। हॉर्नग्रीन बुक में भी है। हाँ, ठीक तो है। अगर मैं हॉर्नग्रीन बुक में ढूंढूं इसको, चैप्टर 10 फॉर चैप्टर 11 प्रेजेंट, सॉरी चैप्टर 11, तो सर्च का ऑप्शन कहाँ से आएगा? इट वुड बी नियर 446 पेज के आसपास, मतलब 440 के पेज के आसपास है। आपकी न्यू वाला वर्जन है, ये डिफरेंट बुक है। हाँ, वो चैप्टर 11। राइट, इतना कर लिया है ईशा आपने? क्या? इतने सारे पेज खत्म कर दिए पढ़ के? अरे ये नहीं, बुक खुली हुई है सामने में मेरे। अच्छा, ओके, सो अब क्योंकि हमने ये फाइंड आउट कर लिया, सो ये रे स्टेप, आई थिंक ये वाले स्टेप अब आपको सबको सही से दिख रहे होंगे, राइट। राइट। तो स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड अनसर्टेनिटीज, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 1 होता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2 इज योर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि उसके अराउंड जितनी भी आपके पास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको वो सारी ऑब्टेन करनी होती है टू अराइव एट अ बेटर डिसीजन। It may or may not involve collecting all the historical cost and all other costs, क्योंकि you never know which cost will impact your decision. Step 3 is make the predictions about the future. तो जो दोनों डिसीजंस होंगे उसमें आपको कुछ सर्टेन एक्शंस लेने होंगे, और उन सर्टेन एक्शंस का एक क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा होगा। क्वालिटेटिव जैसा मैंने बोला वो थोड़ा इनटैंजिबल होता है, तो उसको कई बार हम पकड़ नहीं पाते, बट क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट दोनों डिसीजन मेकिंग का बिल्कुल क्लियरली आ रहा होगा। तो आप दोनों को डिसीजंस को मैप करोगे और देखो, मतलब मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर करने के लिए आपको वो दोनों को मैप करके एंड देन यू विल मेक प्रिडिक्शंस। सो जब आपने स्टेप 3 में दोनों के अराउंड अपने क्वांटिटेटिव को निकाल लिया अपना, स्टेप 4 में make decisions by choosing among alternatives. तो sometimes alternative could be A or B, sometimes it could be 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस में से कोई एक चूज करो, ठीक है। सो वो सारे ऑल्टरनेटिव्स का आपने स्टेप 3 में निकालना है, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे। देन स्टेप 4 में आपने डिसीजन ले लिया कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन, तो उसके बाद स्टेप 5 में यू इम्प्लीमेंट द डिसीजन, इवेल्युएट इट,
इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड लर्न। तो आपने क्योंकि स्टेप 4 में डिसीजन चूज कर लिया होता है, तो स्टेप 5 में आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करके इम्पोर्टेंट इज कि आप उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो कि जैसा हमने सोचा था क्या बिल्कुल वैसा हुआ। अगर हाँ तो गुड, अगर ना तो लर्न फ्रॉम इट so that in future you take better decisions around it। ठीक है, सो ये था आपका मतलब 5 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। वेरी गुड। रिकैपिचुलेट कर लेते हैं बस। हाँ जी, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं ब्रीफली बस। ठीक है। तो स्टेप 1 में आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम और अनसर्टेनिटी को। स्टेप 2 में आप उसके अराउंड इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। स्टेप 3 में आप जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है उसके अराउंड प्रिडिक्शंस बनाओगे कि ये आउटपुट तो ये मेरा कॉस्ट और ये फाइनली मेरा ऑपरेटिंग इनकम आया या कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया आपका। ये अगर मैं डिसीजन लेता हूँ तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन, ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम, और ऐसे करके प्रॉपर उसे वो करोगे। स्टेप 4 में आप उसको डिसीजन चूज करोगे कि आउट ऑफ द ऑप्शंस विच वन आर यू गोइंग अहेड विद। स्टेप 5 में आप उसको इम्प्लीमेंट करके इवेल्युएट करोगे एंड उस इवेल्युएशन के थ्रू जो भी आपकी लर्निंग है उसको आप मतलब लर्न करो बेसिकली। ठीक है, सो ये आपका 5 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया हुआ है, इसलिए नॉट गिविंग मोर टाइम टू इट। तो नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंस। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना कि भाई हम कैसे पता लगाएंगे क्या रेलेवेंस है क्या नहीं है। तो उसके बड़े अच्छे मतलब वो दिया हुआ है यहाँ पे। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इट अकर्स इन द फ्यूचर। ठीक है, मतलब जब आपको फाइंड आउट करना हो ना कि ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, तो एक जो आपको हिंट मिलेगा कि वो जो रेलेवेंट कॉस्ट जो होती है वो फ्यूचर में अकर होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेरी मैंने बताया संक कॉस्ट होती है और संक कॉस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वट एवर डिसीजन यू मेक, क्योंकि वो कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है। तो रेलेवेंट कॉस्ट को पहचानने का सबसे पहला फीचर है कि इट अकर्स इन द फ्यूचर। ठीक है, द नेक्स्ट इज इट डिफर्स अमंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आप ऑप्शन ए चूज कर रहे हो तो वो कुछ और होगा रेलिवेंट कॉस्ट, मतलब रेलिवेंट कॉस्ट, और अगर ऑप्शन बी चूज कर रहे हो तो उसी के कंपैरेटिवली में कुछ और कॉस्ट लग रहा होगा। तो ये भी एक तरीका है कि आपका रेलेवेंस फाइंड आउट करने का कि ऑफ ऑल द कॉस्ट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन तो रेलिवेंट कौन सी है। ठीक है, तो then relevant costs are expected future costs, relevant revenues are expected future revenues। ठीक है, future not historical। ठीक है, past costs और historical costs are never relevant and are also called sunk costs। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No. ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये 2 प्रिंसिपल्स आप, और आई वुड से 3 प्रिंसिपल्स कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी अवॉइड करना है, बट वो पहले में ही कवर है, इट अकर्स इन द फ्यूचर। तो ये 2 प्रिंसिपल्स जो कैरेक्टरिस्टिक है रेलेवेंट कॉस्ट के, इसकी हेल्प से हम रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में अगर मतलब हमें देखना हो तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर आउटकम्स दैट आर मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और qualitative factors are outcomes that are difficult to measure accurately in numerical terms, such as satisfaction, such as employee morale। ठीक है, अगर किसी चीज मेरे को कोई मतलब मेरे को आपने पे इंक्रीज नहीं करी, बट मेरे को कुछ ऐसा पर्क दे दिया जिससे जो कि जिसका इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं पर्क का भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम समवन कि who loves to travel, ठीक है, और मेरे बॉस को ये बात पता है, तो उन्होंने मुझे ऐसे असाइनमेंट पे वो कर दिया जिसमें ट्रैवल इंक्लूड है, तो वो काइंड ऑफ मोटिवेशन और सेटिस्फाई करेगा मुझे कि यस कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। ओबी में भी एक एग्जांपल हमने ऐसा डिस्कस किया था कि एक बंदा था जो काफी अच्छी सैलरी और पे ग्रेड पे था, बट क्योंकि उसका वहां पे वो सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव नहीं हो रहा था, उसने कहा था मैं ना थोड़ी कम सैलरी ले लूंगा लेकिन मैं लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं वहां पे जो फैक्ट्री में जितने भी जो लेबर्स हैं
मैं उनको एडुकेट करके उनको उनका लेवल इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो ऑल्दो उस लेवल पे उसको सैलरी कम मिल रही थी उस पर्टिकुलर जॉब से, बट उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर था। तो आपने इसको क्वालिटेटिव फैक्टर्स को आप मतलब वैसे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, I would like to add here. फाइनेंशियल टर्म्स में। सॉरी, I would like to add here. What you see in that financial industry, credit card और mainly customer sourcing के लिए outsource किया जाता है, and that become a menace for the cross selling. एक क्रेडिट कार्ड आप बना लो और उसके बाद आपको परेशान हो जाना पड़ता है क्योंकि जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं वो डाटा सेल कर देते हैं, और जो कंपनी खुद करती है सोर्सिंग, फॉर एग्जांपल अमेरिकन एक्सप्रेस, तो उनके यहाँ पर फ्रॉड की पॉसिबिलिटी कम बनती है। तो ये क्वालिटेटिव है कि जो मिसलीड हुआ इंडस्ट्री के पास। गुड। तो अब हम आगे एक एग्जांपल देख रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट की इलस्ट्रेशन में, ठीक है। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव 1 है, डू नॉट रीऑर्गेनाइज, ठीक है, एंड ऑल्टरनेटिव 2 है जिसमें आप कह रहे हो रीऑर्गेनाइज। तो इसमें आपको रेवेन्यू दिया हुआ है जो कि दोनों में सेम है, देन कॉस्ट्स का ब्रेकअप दिया हुआ है जिसमें आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जो यहाँ पे दोनों में सेम है। इस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के लिए दोनों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सेम है। मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके सेम है, मार्केटिंग कॉस्ट सेम है, एंड देन एक रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट आ रही है, तो वो उस ऑल्टरनेटिव में आ रही है जहां पे आप कह रहे हैं रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो इन दिस केस आपकी रेलेवेंट कॉस्ट हो गई एक तो लेबर कॉस्ट, बिकॉज वहां पे चेंज आ रहा है उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग की वजह से, एंड देन एक रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट क्योंकि वो आपकी इंक्रीज हो रही है इन केस यू गो अहेड विद द रीऑर्गेनाइज वाला ऑल्टरनेटिव। तो इन्हीं दोनों कॉस्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है टू शो अस की रेलेवेंट कॉस्ट का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि ओवरऑल टोटल कॉस्ट जो चेंज नहीं हो रही है उसका डिफरेंस भी आ रहा है 70,000, और जो सिर्फ अगर मैं सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट पकड़ू तो उसका डिफरेंस भी आ रहा है 70,000। हम ये सीख क्यों रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट को वो करना, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपके पास बहुत सारे टाइप की कॉस्ट और रेवेन्यू और ये सब इंफॉर्मेशन दी होती है तो हम सिर्फ रेलेवेंट को चूज करें हाईलाइट करना इन द आंसर शीट, हमारे क्वेश्चंस भी जल्दी सॉल्व होंगे और आंसर भी सेम ही आएगा। वो डिफरेंस 70,000 ही रहा इन बोथ द केसेस जब आप सारी कॉस्ट कंसिडर कर रहे हो वर्सेस जब आप ओनली रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर कर रहे हो। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वी प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स सो दैट वी आर वेल वर्स्ड ऑफ पिन पॉइंटिंग की व्हाट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मी एंड व्हाट इज, ठीक है। सो देन मूविंग ऑन, सम कॉस्ट्स आर इररिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग as I told you, because वो costs that have already occurred and cannot be changed are classified as sunk cost। तो ये एक बहुत important definition है। Not all historical cost is your sunk cost, but जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एक लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ठीक है, 10 साल की लीज का, तो अब आपको 7 साल ऑलरेडी हो गए हैं, अगले 3 साल आपको मशीन की लीज की बात कर रहा हूँ, अगले 3 साल अगर आप लीज ब्रेक करते हो, ठीक है, तो आपको लेट से आपने टोटल 10 साल के लिए 10 लाख दिए थे, तो आपके 3 लाख की, वैसे तो बुक वैल्यू के हिसाब से मैं बात करूं 7 साल ओवर हो गए तो 3 लाख की वैल्यू बची है अभी, राइट। तो लेकिन अगर आप लीज को बीच में तोड़ते हो लेट से, तो आपको पूरे 3 लाख नहीं मिलने हैं, तो 2 लाख ही मिलने हैं। तो यहाँ पे आपका जो मतलब कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा, वो 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि जिस ऑल्टरनेटिव में आप लीज ब्रेक कर रहे होंगे उस ऑल्टरनेटिव में आपको वो 2 लाख का कैश भी मिल रहा है, ठीक है। got it. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी एकदम आप उसको सम कॉस्ट के डब्बे में डाल के बंद कर दो, बट आपको ये देखना होता है कि
जो डिसीजन मेकिंग हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं उसका कोई चेंज हो रहा है क्या उस रिलेवेंट सॉरी मतलब उस कॉस्ट पे कोई चेंज हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो वो उतना पोर्शन उसका रिलेवेंट हो जाए। सो कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड आर क्लासिफाइड एज सम कॉस्ट, जो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, सम कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड बिकॉज दे कैन नॉट बी चेंज्ड बाय फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, तो सिंपल रीजन है आपका कि सम कॉस्ट आप क्यों नहीं कंसिडर करते। आई होप नो डाउट टू एनीवन। Yeah, all clear. ओके, टर्मिनोलॉजी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है आपकी द एडिशनल टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर एन एक्टिविटी। तो कोई एक्टिविटी आप लेट्स से 8000 आउटपुट लेवल पे आपकी एक कॉस्ट आ रही है। ठीक है, एक कॉस्ट आपने आइडेंटिफाई की है। जब आप उसको 8000 से 9000 एक्टिविटी लेवल को बढ़ा दोगे, तो अभी हम जब चैप्टर 10 में वेरिएबल सेमी वेरिएबल मिक्स्ड कॉस्ट को जब हम वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट मेरी डिफरेंशिएट होती ही है अप टू अ रिलेवेंट रेंज। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो आपकी जब आप 8000 के आउटपुट से 9000 के आउटपुट पे मूव करते हो, उसकी वजह से जो भी आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है दैट इज योर इंक्रीमेंट, मतलब जो भी चेंज इन कॉस्ट होता है दैट इज योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, so the additional total cost incurred for an activity is your incremental cost. Then moving on to differential cost, the difference in total cost between the two alternatives. ठीक है, तो 8000 की कॉस्ट पे आपका डिफरेंस मतलब एक कॉस्ट आ रही है, जैसे लेट्स से कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आपकी लेबर कॉस्ट है 16000। ठीक है, और यहाँ 9000 पे आपकी कॉस्ट 2 रुपी पर यूनिट के हिसाब से आपकी लेबर कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पे 18000। तो 16000 माइनस 18000 इज योर डिफरेंशियल कॉस्ट विच इज 2000। लेकिन इसी को अगर मैं और भी ऑल्टरनेटिव्स सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक साथ देखूं कि और क्या क्या चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन यूनिट, तो वो टोटल लेवल पे जब मैं देख रहा हूँ तो दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, डिफरेंशियल आपकी किसी एक पर्टिकुलर उसको मतलब उसको एलिमेंट को देखते हुए हो सकती है। इन दिस एग्जांपल लेबर कॉस्ट को मैंने देखा, तो लेबर कॉस्ट का ही डिफरेंस जब मैं देख रही हूँ तो दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट, और जब मैं ओवरऑल टोटल कॉस्ट में क्या वेरिएंस आ रहा है उसको देख रही हूँ तो दैट इज माय इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कोई डाउट? Okay, silence will be treated as no doubt. Good. Incremental. No doubt. Okay. Incremental revenue is the additional total revenue from an activity, and differential revenue is the difference in total revenue between two alternatives. ठीक है, so अब कुछ टाइप के Differential डिसीजन, cost and differential revenue will be calculated only for alternatives. हाँ जी, only for alternatives. ठीक है, अब कुछ टाइप के डिसीजन है जो यहाँ पे स्लाइड्स मेंशन की हुई हैं कि ये वाला डिसीजन इस स्लाइड पे, वो वाला डिसीजन उस स्लाइड पे। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन जो हम लेते हैं, तो मैं ये स्लाइड्स स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम सीधा स्लाइड्स पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो डिसीजंस मेंशन है। ठीक है, अब आपकी है वन टाइम ओनली स्पेशल ऑर्डर्स। ठीक है, क्वेश्चन विल से कि एक फैक्ट्री है जो कि आपकी लेट से 10,000 यूनिट उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, बट राइट नाउ जो ऑर्डर्स हैं उसके पास, रेगुलर ऑर्डर्स हैं जो उसके पास, वो लेट से 8,000 यूनिट्स के हैं। ठीक है, उसके पास एक पर्टिकुलर मंथ में एक स्पेशल ऑर्डर आता है जो कि 2000 यूनिट का है, लेकिन उस स्पेशल ऑर्डर का रेवेन्यू मोस्टली, उस स्पेशल ऑर्डर का रेवेन्यू ना आपके रेगुलर कस्टमर के रेवेन्यू से कम होता है मोस्टली। तभी वो स्पेशल ऑर्डर वन टाइम ऑर्डर आपका आता है और तभी आपको डिसीजन लेना होता है। अगर उसका रेवेन्यू, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैं चप्पल बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं जनरली पेयर ऑफ चप्पल अगर मैं 100 रुपीज में सेल करती हूँ, ठीक है, स्लीपर्स को, तो आप
मेरे पास 10,000 की कैपेसिटी है स्लीपर्स मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। अगर मेरे पास करंट ऑर्डर जो है वो सिर्फ 8,000 का और मैं 100 रुपीज पे सेल करती हूँ, तो मेरे पास ना जो स्पेशल ऑर्डर होगा ना वो पक्का 80 रुपीज 90 रुपीज यानी कि 100 पर यूनिट से नीचे ही होगा। तभी मेरे को डिसाइड करने में थोड़ा सा ये डिसीजन मेकिंग देखनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट कि भाई मेरे को ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका क्वालिटेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपके जो रेगुलर कस्टमर है उनको पता चले कि यार इसने तो एक स्पेशल ऑर्डर में 80 रुपए में चप्पल बेच दी, तो ये जब 80 रुपए में बेच सकते तो हमें भी प्रॉफिट देना, मतलब जो इसको प्रॉफिट हुआ है उसका थोड़ा पोर्शन हमें भी वो करे ना, हम इसके रेगुलर कस्टमर है। तो वो एक मतलब उनकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट आ सकता है, दैट इज अ क्वालिटेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स में ये हो सकता है, उसी क्वालिटेटिव का क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि वन ऑफ माय रेगुलर कस्टमर सेज कि रचिता बिकॉज दिस मंथ यू गॉट एडिशनल स्पेशल ऑर्डर, तो आपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे अपना वो किया, मतलब ऑपरेट किया, तो उसकी वजह से आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज हो गया, उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत बेनिफिट आ रहा है पास इट ऑन टू अस आल्सो, हमें भी 95 में चप्पल दो फॉर दिस मंथ, ठीक है। तो मेरे रेगुलर कस्टमर अगर मुझे 95 में मांगेंगे तो अब मेरे पास फिर से दुविधा हो गई कि अरे भाई अब मेरे रेगुलर 8,000 जो मेरे 100 में वो होते थे वो भी 95 बोल रहे हैं, तो शुड आई टेक द डिसीजन और नॉट, समझ लो। तो ये वन टाइम और ओनली और स्पेशल ऑर्डर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है। सो डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्पेशल ऑर्डर्स व्हेन देयर इज आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। एंड द स्पेशल ऑर्डर्स हैव नो लॉन्ग रन implications, ठीक है। डिसीजन रूल, डज द स्पेशल ऑर्डर जनरेट एडिशनल ऑपरेटिंग इनकम? अगर एडिशनल ऑपरेटिंग इनकम जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ द स्पेशल ऑर्डर, यस एक्सेप्ट इट, क्योंकि क्वालिटेटिव पे हमें नहीं डिसीजन लेना है, हमें क्वांटिटेटिव पे डिसीजन लेना है, और क्वांटिटेटिव में ऑपरेटिंग इनकम इज अ गुड मेजर, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो यस एक्सेप्ट इट, अदरवाइज नो रिजेक्ट इट। तो देन कंपेयर रेलेवेंट रेवेन्यूज एंड रेलेवेंट कॉस्ट टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी कि मेरी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। स्पेशल ऑर्डर में किसी को भी कोई डाउट? नहीं। कूल। तो इन्होंने एक स्पेशल ऑर्डर का एग्जांपल दिया हुआ है, आई वांट टू स्किप इट, कैन आई, बिकॉज थ्योरी पूरी कवर करनी है। ओके, ये मैम की स्लाइड्स है ना, हम रेफर कर लेंगे फिर। हाँ मैम की स्लाइड से आप रेफर कर लेना। आई हैव वन क्वेश्चन, दैट इज हाँ अगर हम जी, सिर्फ मैम की स्लाइड्स रेफर कर लें, हॉर्नबिल ना पढ़े तो चल जाएगा ना? वो हमें पेपर में पता लग जाएगा। श्वेतल के नायड मैम ने लास्ट क्लास या उसके पिछली क्लास में ये बोला था कि माय स्लाइड्स आर अ कंपाइलेशन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हॉर्नग्रेन, बट जैसे ये वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 11, इट हैज टू बी वेरी एग्जॉस्टिवली रेड क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत है। तो मैम ने ये बोला था कि प्लीज रेफर टू हॉर्नग्रेन, दैट्स व्हाट शी सेड एट द लास्ट, इज व्हाट आई रिमेम्बर। Okay, that we need to re-study the book. हाँ, तो Fine. जहाँ और जहाँ हॉर्नग्रेन, हाँ सॉरी सॉरी आयुषी, जहाँ प्लीज जहाँ कंटिन्यू। पे कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है विद दिस, ये तो मैम ने इसलिए दिया ताकि थ्योरी बेसिक समझ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट कहीं थ्योरेटिकल आपको लगता है कि ये टॉपिक बड़ा और समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज रेफर टू हॉर्नग्रेन, आई वुड से उसमें काफी इलैबोरेट वे में दिया हुआ है। Fine. So how 100%. much left for today? 21 minutes to go, उसमें सॉरी जितना भी रचिता, कवर यू हो वर जाए। सेइंग समथिंग। No, you exactly, covered it well. So nothing to add from my side. And 21 minutes to go, प्रकाश जी जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे 21 Fine. minutes में। ठीक है। Potential problems in relevant cost analysis. अब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम relevant cost analyze कर रहे होते हैं? Avoid incorrect general assumptions such as that all variable costs are relevant cost and all fixed costs are irrelevant cost. Even in our example, we had irrelevant variable and marketing cost. So क्या होता है कि ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट है तो वो रिलेवेंट ही है और
इररिलेवेंट और फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो इररिलेवेंट ही है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आपके क्वेश्चन में आपकी जो डिसीजन लेने हैं उससे रिलेटेड कई बार आपको जैसे अगर मैं कंटिन्यू करूं, जो मैंने 8000 और स्लीपर्स वाला एग्जांपल दिया है, 8000 और स्पेशल ऑर्डर ऑफ 2000 यूनिट्स, तो मैं जनरली लेट्स से फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर करती हूँ कि मेरी मार्केटिंग और इन सब पे कॉस्ट वो होती है, ठीक है, खर्च होती है। वो 8000 चप्पल ऐसे ही नहीं सेल कर रही मैं, मेरी एक मार्केटिंग की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और लेट्स से मार्केटिंग की ही मेरी सर्टेन पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, क्योंकि जो मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनको मैंने कमीशन बेस पे रखा हुआ है, और वो क्योंकि वो जाके ऑर्डर लेके आते हैं और दे इंश्योर कि मेरा 8000 तक का ऑर्डर बुक रहे हर महीने, ठीक है, तो वो मेरी मार्केटिंग की या सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट भी है, कमीशन पार्ट उसका, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर डिसीजन में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग आर इररिलेवेंट कॉस्ट्स। क्यों इररिलेवेंट? क्योंकि ये जो स्पेशल ऑर्डर मेरे पास आया है, ये मेरे पास खुद ही आया है, खुद, विदाउट एनी मार्केटिंग एफर्ट और एनीथिंग, और ये बस मेरे पास डायरेक्टली आ गया है। तो जब हम कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम वेरिएबल देखते ही मल्टीप्लाई बाय, चलो 2000 यूनिट और प्रोड्यूस करनी है, मल्टीप्लाई बाय उसकी वेरिएबल कॉस्ट, कमीशन तो लगेगी यार, अगर फिक्स नहीं भी लग रही तो कमीशन तो लगेगी ही ना, तो हम ऐड कर लेते हैं उसमें। नो, वी डोंट हैव टू डू सच स्टफ, ठीक है। तो पॉइंट, ये पोटेंशियल प्रॉब्लम है वो यही हाईलाइट कर रहा है कि रेलेवेंस इस बात से बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होगी कि वो फिक्स्ड कॉस्ट है कि वो वेरिएबल कॉस्ट है। रेलेवेंस इसी बात से डिसाइड होगी कि वो उस पर्टिकुलर डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज be aware that unit fixed cost data can potentially mislead managers in 2 ways, ठीक है। यूनिट फिक्स डेटा अब कैसे हमको कई बार मिसलीड कर जाता है वो हम इसमें देखते हैं। तो यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डेटा कैन पोटेंशियली मिसलीड मैनेजर्स इन 2 ways, which is fixed unit cost might include irrelevant cost, ठीक है, cost that will not change whether or not the one time only order is accepted or not, ठीक है। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने आपको फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट का वो दिया, अगर मैं फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट भी आपको 8000 यूनिट पे लोड करके ये बता देती कि फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ इतना पर यूनिट, लेट्स से 8000 ही मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 1 रुपी पर यूनिट मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है एट 8000 लेवल, तो अगर मैं उसको आपको यही बोल देती यूनिट में ही एडजस्ट करके पर यूनिट करके ही दे देती, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर 10,000 जिस मंथ में स्लीपर सेल हो रही है, तो ये 10,000 हो जाएगी अपने आप ही, फिक्स्ड कॉस्ट भी। नो, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस हमने ये भी चेक करना है कि वो रेलेवेंट भी है कि नहीं है इस डिसीजन मेकिंग से, ठीक है। सो fixed unit cost might include irrelevant cost that will not change whether or not the one time only order is accepted or not, ठीक है। सेकेंड, if using the same unit fixed cost at different output levels, managers may reach erroneous conclusion, so total fixed cost should be used। तो आपको अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दी भी हुई है ना, तो जो क्वेश्चन में आउटपुट लेवल दिया हुआ है ना आपको, लेट्स से इस एग्जांपल में 8000 यूनिट पे आपको पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिफाइन की हुई थी 8001 पर यूनिट, तो आप उसे हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कन्वर्ट कर लें कि सो विच मीन्स माय टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 8000, ठीक है, एंड देन उसी 8000 को ही अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करें, ठीक है। सो तो ये गलती हो जाती है, तो इसको हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कि ये नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। अब है शॉर्ट रन प्राइसिंग डिसीजन, सॉरी बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ ना कि नहीं, ठीक है, कूल। Short run pricing decision, a special order or decision is in many respects a short run pricing decision.
Sometimes the decision is simply about setting an acceptable price. So remember the decision rule. Any price above incremental cost will improve operating income. However, consideration must be given to the capacity constraints, current market conditions, customer demands, competition. ठीक है, तो अब सेम जो हम 8,000 और 10,000 वाला एग्जांपल कर रहे हैं, जानबूझ के उसी को रिपीट करूं ताकि बैठ जाए मन में. एनी प्राइस अबव इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल इंप्रूव ऑपरेटिंग इनकम. तो जो भी मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट मैंने आइडेंटिफाई कर ली है अपने डिसीजन से रिलेटेड, ठीक है, लेट्स से वो 2000 चप्पल बनाने में मुझे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और अदर वेरिएबल कॉस्ट जो कि रिलेवेंट थी इस डिसीजन से, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो वेरिएबल है वो जरूरी नहीं है रिलेवेंट है, बट जो रिलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी मिला के मेरे पास एक टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है कि मेरे को 75 रुपए की चप्पल पड़ रही है. ठीक है, इसमें मैंने संक कॉस्ट इंक्लूड कर दी है, यानी कि जो मेरी हिस्टोरिकल फिक्स्ड कॉस्ट है या जो ऐसी कॉस्ट है जो इस डिसीजन की वजह से चेंज नहीं हो रही है, तो वो मेरी 75 निकल के आ रही है. ठीक है, अब मुझे जो वन टाइम ऑर्डर आया 2000 स्लीपर्स का, उसमें मेरे पास आया है 80 रुपीज में मुझे सेल करनी है. शुड आई सेल इट और नॉट? तो क्योंकि मेरी टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो कम है जो मेरी रेवेन्यू है उससे, इसको यार टोटल मैं बोल रहा हूँ और फिर वो पर यूनिट में कंपेयर करके बता रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट्स दोनों जगह कर लेना. ठीक है, टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगी 75 मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट्स एंड टोटल एडिशनल रेवेन्यू हो जाएगा 80 इंटू 2000 यूनिट्स. ठीक है, हाँ, तो इन दोनों का जो टोटल का डिफरेंसेस है फॉर 15,000 and 16,000. कूल, अगर आपने कर लिया तो 1000 मुझे ज्यादा मिल रहा है, तो 1000 क्योंकि मुझे ज्यादा मिल रहा है तो आई विल गो हेड. ठीक है, लेकिन मुझे ये ध्यान में रखना है कि उसकी वो मेरी आइडल कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है, उसकी वजह से मेरे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. अगर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो जाएगा, फिर मुझे उसका भी एक पूरा वो तैयार करना पड़ेगा. जैसे कि इस केस में ये हो सकता है कि लेट्स से मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी वो 9000 यूनिट थी. ठीक है, तो 8000 के मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर है, स्पेशल ऑर्डर आया है मेरे पास 2000 यूनिट का. तो अगर मैं स्पेशल ऑर्डर को या तो मैं फुल में एक्सेप्ट कर सकती हूँ या रिजेक्ट कर सकती हूँ. ऐसे पार्शियली एक्सेप्टेंस नहीं अलाउड है स्पेशल ऑर्डर में, लेट्स से. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, मुझे 1000 यूनिट अपने रेगुलर कस्टमर को वो करना पड़ेगा कि मतलब उनको कम सप्लाई करनी पड़ेगी, देन ओनली आई विल बी एबल टू एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर. तो इसमें फिर मैं दोनों तरीके से निकाल के देखूंगी कि रेगुलर कस्टमर को 7000 यूनिट सेल करी एट रेगुलर प्राइस एंड सब कुछ, और इस स्पेशल ऑर्डर की रिलेवेंट कॉस्ट को भी ऐड वगैरह करके उन दोनों का जो डिफरेंशियल आएगा, अगर वो डिफरेंशियल स्टिल पॉजिटिव है तो हम इस क्वेश्चन में तो ये लिख देंगे, आंसर में तो लिख देंगे हम कि क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा आ रही है वो कंसिडर करने से, तो हमें जाना चाहिए अभी भी उस तरफ. ठीक है, और अगर कम आ रही हो तो नहीं जाना चाहिए उस तरफ. लेकिन वैसे इसके दूसरे इम्पैक्ट बहुत होते हैं कि भाई आपके जो रेगुलर कस्टमर है हो सकता है वो चिढ़ भी जाए कि इसने एक स्पेशल ऑर्डर के लिए मेरे को वो कर दिया, मतलब मैं अब इसको आगे से ऑर्डर नहीं दूंगा. आपके अगर लेट से बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, करंट मार्केट कंडीशन का मतलब यही है, अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर है वो फॉरन से पहले आपको छोड़ के निकल लेगा, तो आपको ध्यान देना है उन बातों का भी. ये क्वालिटेटिव डिसीजन है, तो आप अपने क्वेश्चन में इसको जस्टिफाई कर सकते हो. अगर क्वेश्चन से हिंट आ रहा है तो आपको, तो आप ये लिख सकते हो जेनरिक उसमें कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिख दिया, बट साथ में ये लिख दो हाउएवर द मतलब the decision has other implications such as this and if all of these मतलब fall in the right direction then definitely we should go ahead. ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग टाइप आती है इनसोर्सिंग वर्सेस आउटसोर्सिंग, मेक और बाय डिसीजन भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये जनरली क्या होता है कि मेक और बाय डिसीजन क्या होता है, जब मेरे बड़ा प्लांट लगा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट, और उसमें ना मेरे पास
एक सर्टेन प्रोसेस या कई बार पूरा एंटायर प्रोसेस के लिए मेरे पास बाहर से कोटेशन आ जाती है कि जी मेरी मान लो उस चीज को बनाने की इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट मेरे को पर यूनिट पड़ता है 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है। और बाहर से कोटेशन आ जाती है कि जी हम आपको 9 रुपए पर यूनिट में देने के लिए तैयार है। तो एक बार तो देख के बड़ी ल्यूक्रेटिव सी लगेगी कि यार मेरे को 10 रुपए कॉस्ट पड़ रही है और बाहर से 9 रुपए में आ रही है, तो व्हाई नॉट गो अहेड विद दिस डिसीजन, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको क्वेश्चन में सारी कॉस्ट को ध्यान से मेक आउट करना है कि भाई ये कॉस्ट का इम्पैक्ट जो मैंने 10 रुपए करी हुई है, एज्यूम करी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, हो सकता है उसमें से कुछ कॉस्ट बड़ी इररिलेवेंट है, वो मैं डिसीजन लूं या ना लूं वो कॉस्ट मुझे पड़ेगी ही पड़ेगी। तो लेट से 2 रुपए की जो कॉस्ट है वो बड़ी इररिलेवेंट सी है, वो मैं चाहे 9 रुपए का बाय डिसीजन लूं तब भी वो मुझे पड़ ही चुकी है। तो मैं उस डिसीजन को तो अपने उससे आउट रख सकती हूँ ना, जब मैं डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ उस पर्टिकुलर इररिलेवेंट कॉस्ट को या सम कॉस्ट को, इफ आई मे से, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने एक तरफ उसको 10 में रख दिया और दूसरी तरफ लेट से नहीं रखा उसको 9 रुपए वाले डिसीजन में, तो हमने ये देखा ही नहीं कि मेरी जो 9 रुपए वाली है वो फिर भी 11 रुपए ही पड़ेगी, क्योंकि वो 2 रुपए तो एनी हाउ लग ही रहे हैं, समझ लो। तो इसलिए आप रेलेवेंट टू रेलेवेंट का ही कंपैरिजन करोगे, Sorry, मेक I और बाय missed the 2 डिसीजन। rupee part. हाँ जी, Sorry, I missed the 2 rupee part in that कौन सा outsource. पार्ट? 2 rupee. अच्छा 2 रुपी, 9 2 plus रुपी, 0. अच्छा 2 रुपी वॉज लेट से जो 10 रुपए हमें कॉस्ट बताई हुई थी उसमें से 2 रुपी जो थी वो संक कॉस्ट थी, Fine. ठीक है। Okay. तो यानी कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है 8 रुपए है और मुझे बाहर से कितने में मिल रहा है 9 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। Okay, got it. तो जैसा मैंने बोला कि इनिशियली तो देखते के साथ बड़ा ल्यूक्रेटिव लगा ना कि यार मेरे को 10 रुपए कॉस्ट पड़ रही है, 9 रुपए में मिल रहा है, बाहर से क्यों नहीं ऑर्डर कर लूं मैं, ठीक है। लेकिन जब हमने ध्यान से क्वेश्चन को सारी रेलेवेंट कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हुए देखा तो मैंने पाया कि मैं 8 रुपए में बना रहा हूँ और बाहर से मुझे 9 रुपए में मिल रहा है, तो इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल डिसीजन, आई शुड नॉट बाय, आई शुड कंटिन्यू टू मेक इट। और इसका वाइस वर्सा भी आ सकता है, वो तो डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वेश्चन है, कि हो सकता है कि आपका अल्टीमेटली आपका बाय डिसीजन ही फेवरेबल निकल के आए, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग इज परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड vendors, and insourcing means that you will produce the goods within the organization, ठीक है। Decision about whether to insource or outsource are called make or buy decisions. Opportunity costs are the contribution to operating income foregone by not using a limited resource in its next best alternative, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट भी लग जाता है कि अगर लेट से मैं मेरे पास एक और क्वेश्चन में और थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट करें अगर क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन में मेरे पास ये बताया हुआ है कि अगर मैं बाहर से बनवा लूं तो मेरे ये जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है ये एक और मतलब थर्ड चीज है वहां पे उसको बनाने में, मतलब थर्ड या सेकंड चीज है जिसको बनाने में वो रिसोर्सेज मेरे यूटिलाइज हो सकते हैं, ठीक है। शुड आई गो अहेड और नॉट, तो तब हमें अपने डिसीजन में उस जो अगला फैक्टर हमें मिला है उसको भी कंसिडर करना है कि जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर लूं तो उसके बाद इज इट मेकिंग सेंस फॉर मी टू कंटिन्यू, ठीक है, मेकिंग इट, और रादर आई शुड बाय इट फ्रॉम आउटसाइड एंड जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको उस डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट करके वहां से अलग और ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है। तो मेक और बाय डिसीजंस में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी थोड़ा सा रेलेवेंस आ जाता है, ठीक है। रचिता, हाँ जी, ये लास्ट 5 मिनट्स का ना मैं रिकॉर्डिंग से सुन लूंगी, एक्चुअली मम्मा को ना कुछ चाहिए, सो आई हाँ विल हाँ लीव। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय एवरीवन। ओके, इनसोर्सिंग वर्सेस आउटसोर्सिंग एंड मेक और बाय डिसीजन में सेकंड स्लाइड, आउटसोर्सिंग एंड आइडल फैसिलिटीज।
to make a good decision here, managers must consider the difference in relevant cost between the alternatives, including the cost of idle capacity and related fixed cost. ठीक है, तो आइडल फैसिलिटी से रिलेटेड जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, उसमें जो भी रेलेवेंट कॉस्ट है वो हमें कंसिडर करनी है, जो इररेलेवेंट है वो हमें नहीं कंसिडर करनी है। स्ट्रैटेजिक एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स, वो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर डिसीजन के कई बार क्वालिटेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो almost always strategic and qualitative factors become important determinants of the outsourcing decision. Weighing all these factors require considerable managerial judgment and care. तभी अगर आपको याद हो तो जो 5 steps हमारे decision making के हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े थे, उसमें 5th स्टेप में यही है कि implement एंड देन एनालाइज कि आप क्या डिफरेंस रहा आपका, आपने जो सोचा था वैसा ही हुआ या नहीं हुआ। अगर वैसा हुआ तो वेल एंड गुड, वैसा नहीं हुआ तो लर्न फ्रॉम इट सो दैट यू डोंट एंड अप रिपीटिंग द मिस्टेक अगेन इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसीलिए ये था। और उसके बाद इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग, international outsourcing requires managers to evaluate manufacturing and transportation cost, exchange rate risk, and other strategic and qualitative factors such as quality, reliability, and efficiency of the supply chain. तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो आपको ये सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने होते हैं कि आपकी एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सही आपने इवेल्युएट की है कि नहीं की है, एक्सचेंज रेट का रिस्क कंसिडर किया है कि नहीं किया है जब आप अपनी वो कर रहे हो तो, एंड स्ट्रैटेजिक या क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो आपके होते हैं कि क्वालिटी तो सही आएगी ना, क्योंकि चाइना इज नोन कि वहां पे आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी भी अवेलेबल होती है और वर्स्ट क्वालिटी भी अवेलेबल होती है। अब आपको कौन से वाली क्वालिटी चिपक रही है इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर जैसे कि वॉर इन यूक्रेन वगैरह, इसकी वजह से सप्लाई चेन पे बहुत इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो अगर सप्लाई चेन की वजह से लेट से आपने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है इंटरनेशनली आउटसोर्स कर लूंगे मैं इसको, ठीक है, और पता चला कि वो बिकॉज ऑफ समथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड, मतलब अराउंड योर वो सप्लाई चेन, वो आपके पास प्रोडक्ट ही पहुंच नहीं पा रहा है। अब आप फंस गए क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो आउटसोर्स करूंगी, और इसलिए शायद आपने अपनी जो एग्जिस्टिंग मशीन थी उसको भी निकाल दिया, चलो जी तुम टाटा बाय बाय बोलो, और पता चले हमारे पास गुड्स भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो बस वो यही कह रहे हैं कि इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, द टोटल ऑल्टरनेटिव्स अप्रोच, इसका सिंपल मीनिंग है कि फ्यूचर की जितनी भी कॉस्ट है, रेवेन्यू है फॉर ऑल प्रोडक्ट, इफ वन फॉर एग्जांपल वन डिसीजन विल क्रिएट आइडल कैपेसिटी, but that idle capacity can be used for manufacture of other product that should be considered in the overall decision. ये मैंने अपने एग्जांपल में भी आपको बताया कि अगर हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव आ जाता है कि मैं उन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कहीं और यूज कर सकता हूँ, तो फिर हम उसको भी अपने डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ऐड करेंगे, जितनी भी रेलेवेंट कॉस्ट हैं उससे रिलेटेड, एंड देन वी विल डिसाइड कि वेदर वी शुड डू इट। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड में कवर कर रही हूँ इसके ऊपर, ये इनसोर्सिंग वर्सेस आउटसोर्सिंग, क्योंकि हम टाइम अप हो जाएगा। इनसोर्सिंग वर्सेस ओके, सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच क्या होती है आपकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कंट्रीब्यूशन टू ऑपरेटिंग इनकम that is foregone by not using a limited resource in its next best alternative use. ठीक है, deciding to use a resource one way means a manager must forego the opportunity to use the resource in any other way. ठीक है, managers must consider that cost in their decision making. हमने अभी डिस्कस किया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डालनी है, और ये मेक और बाय डिसीजंस के साथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मेक और बाय में आप क्या करो, आप फाइनली यू आर डिसाइडिंग कि अपने पास बनाओ कि नहीं बनाओ, और नहीं बनाने का अगर आपने डिसीजन ले लिया, यानी बाय का डिसीजन ले लिया अगर आपने, तो वो फिर एट टाइम्स इट कैन प्रूव टू बी इररिवर्सिबल। तो हर फैक्टर का ध्यान रखना होता है। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज देन अनदर फैक्टर जो कि आपका कई बार इम्पैक्ट करता है।
कि तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में ही वो कह रहे हैं द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ एनी ऑल्टरनेटिव इज incremental cost of the alternative plus the opportunity cost of the profit foregone from choosing that alternative. ठीक है, so the opportunity cost of holding inventory is the income foregone by trying up money in inventory and not investing it elsewhere. ठीक है जी, तो यहाँ तक आप में से किसी को कोई किसी तरीके का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, तो ठीक No. है, ओके। तो थोड़ा सा रह गया हमारा इन मे बी कल ही एक मे बी क्लास लेके, ठीक है, इसको मैं खत्म करवा दूँ ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कर पाओ। फाइन, तो Thank you. हमको जो रजित चैप्टर्स नेक्स्ट क्लास में वो भी बता दीजिएगा कि वेरिएंस एनालिसिस वाले वो चीजें। हेलो, आई थिंक शी लेफ्ट। हेलो, हेलो, सॉरी श्वेतल यार, मैं you transferred your rights to somebody else.